Good morning, children. Today I am going to start chapter 15 of your English grammar. The name of the chapter is Active and Passive Voice. So, today let's know about active and passive voice. Children, you know verbs are of many types, and today we will discuss about only the verbs that are two types, that is transitive and second is intransitive. Children, you know passive voice can be made from the transitive verbs only, and the sentence that has transitive verb that can be changed into passive voice. चिल्ड्रन, क्या पता है आपको कि जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? दो प्रकार की मेनली, एक तो ट्रांसिटिव और दूसरा इंट्रांसिटिव। जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का कभी भी पैसिव नहीं बनता। So now let's go to the active and passive voice. Children, you know active sentence is said to be in active voice. A sentence is said to be in active voice only when the subject is the doer of the action. In active voice, subject is given importance. For example, the boy kicked the ball. The boy, you can see here, the boy kicked the wall. Here, order of the sentence subject plus verb plus object. Okay, this is the order of the sentence. But in the passive voice, a sentence is said to be in passive voice when the subject is not the doer of the action. In passive voice, object is given importance. What in active voice? In active voice, subject is given importance. Okay, you know in active voice subject is given importance. What in passive voice? Object is given importance. Okay, for example, the wall was kicked by the boy. Here the order of the sentence is object, verb, subject. You know what is the order of the sentence? Object plus verb plus subject. So children, let's know about more facts of the active and passive voice. When to use the passive voice? Children, when the subject is unknown or cannot be mentioned easily. My pocket was picked. You know, when the subject is unknown, then we can use passive voice. Or cannot be mentioned easily, the subject cannot be mentioned easily, then we can use passive voice. For example, my pocket was picked. My pocket was picked means children somebody picked my pocket, means I don't know who had picked my pocket, but my pocket was picked. मेरी पॉकेट क्या हो गई? किसी ने मार दी, है ना, मेरी जेब किसी ने काट ली, बट यही नहीं पता किसने काट ली, जो सब्जेक्ट है वो पता ही नहीं है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस में किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस का। ओके, एंड द सेकेंड वन इज व्हेन मोर interest is taken in the thing done rather than the doer of it. और तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस का जब हम किस में इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं? द थिंग डन रेदर देन द डॉयर ऑफ इट, उस बात में, उस ऑब्जेक्ट में जो किसी डॉयर के द्वारा की गई है। डॉयर में हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 terrorists were killed. 8 terrorists were killed by the police. हमारा यहाँ पे प्रीफरेंस जो है, हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है वो किसको है? टेररिस्ट को। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? टेररिस्ट को। वर किल्ड, मार दिए गए, बाय द पुलिस। हम इंपॉर्टेंस यहाँ पे पुलिस को नहीं दे रहे, हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो टेररिस्ट को है। हम मेन थिंग किसको मान रहे हैं? टेररिस्ट को। ठीक है ना? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? पैसिव वॉइस का। ओके, द होलीडे वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे बाय द प्रिंसिपल। हम ये नहीं देख रहे किसने अनाउंस किया, वो बात की चीज है कि प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, बट हमारा जो पूरा का पूरा
कह सकते हैं आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो किसके लिए, द हॉलीडे के लिए। यानी हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा क्लिक कौन सी चीज़ कर रही है, हॉलीडे। प्रिंसिपल क्लिक नहीं कर रहे, प्रिंसिपल ने अनाउंस किया है, टीचर ने किया है, वो बात की चीज़ है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं, हॉलीडेज को। द हॉलीडे वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे बाय द प्रिंसिपल। ओके चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द हॉलीडे यस्टरडे। अब यहाँ पे ये एक्टिव स्पीच है, the principal announced the holiday yesterday, but the sentence is the holiday was announced yesterday by the principal. This is the passive voice. So here we are giving the importance to the object. Okay, now let's know about tips to change the sentence from active to passive. How we change the active sentence into the passive. Okay, first is subject in active voice takes the place of object in passive voice. चिल्ड्रन, जो एक्टिव वॉइस का, किसका, एक्टिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वो पैसिव में जाके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। Next, object in the active voice. What? Object in the active voice takes the place of subject in active voice. Sorry, passive voice. Means जो active voice का object होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो active voice का object होता है वो subject बन जाता है। किसका, passive voice का। वो passive voice का subject बन जाता है। ये दो चीज़ें जो आपका पहला रूल और दूसरा रूल जो है, ये दो रूल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वाई इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है जाके, तो उससे पहले किसका यूज कर लेते हैं, बाई का यूज कर लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स नो अबाउट द फोर्थ रूल। ओके, द फोर्थ रूल इज द पास्ट पार्टिसिपल मीन्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, with the proper form of the verb to be. The tense of the verb to be agrees in number, singular or plural, and person first, second, third with the subject. Various forms of the verb be in various tenses are as under. Children, अब एक चीज़ और हमेशा आपको याद रखनी है जो बेसिक है, एक्टिव एंड पैसिव का जो बेसिक रूल्स हैं वो आपके यहाँ पे 4 दे रखे हैं। और लास्ट वन जो है कि आपको ये भी याद रखना है पैसिव वॉइस में ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। मीन्स हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा किसका यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एक्टिव वॉइस में तो कोई सी भी फॉर्म आपको मिल सकती है, फर्स्ट भी मिल सकती है, सेकेंड फॉर्म भी मिल सकती है, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है ना। बट पैसिव वॉइस में ऑलवेज आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म ओनली। ओके, now let's know about how we change the various tenses are as under. Let's know. Children, this is the table to know how we change the sentences into passive voice. This is the most important table of this chapter. You will have to learn this table properly. आपको ये टेबल, पूरी टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। मैं इसका एक टेस्ट भी लूँगा आप लोगों का। देखिए, टेंस फर्स्ट क्या है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में किसका यूज होता है, इज, एम, आर का। पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज और वर का। ऐसे ही फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल बी और शैल बी। ओके चिल्ड्रन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में किसका यूज करेंगे हम, ऑलवेज इज, एम, आर का। ऐसे ही सिंपल पास्ट में किसका यूज करेंगे, वॉज एंड वर का। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में किसका यूज करेंगे हम, ऑलवेज, विल बी और शैल बी का। ओके, नाउ लेट्स गो टू कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज इज, एम, आर प्लस बीइंग यूज होती है। क्या, ये आपको स्पेशली याद रखनी है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। ओके, ऐसे ही बिल्कुल सेम कंडीशन में क्या होता है,
पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर प्लस बीइंग। पास्ट कंटिन्यूस में किसका यूज होगा? जब हम पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और प्लस क्या यूज होगा? बीइंग। क्या यूज होगा? बीइंग। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस। चिल्ड्रन फ्यूचर कंटिन्यूस आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस कभी भी पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। ओके, लेट्स गो टू द परफेक्ट। नाउ परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होगा, जो कि हम एक्टिव में भी करते हैं, बट पैसिव में हैज हैव के साथ बीन का और ऐड कर देते हैं, यानी बीन का यूज और किया जाता है। ठीक है ना? हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में भी यूज होता है, बट एक्टिव में बीन का यूज नहीं होता है, तो पैसिव में हम हैज हैव प्लस बीन का यूज करते हैं। ऐसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं? हैड के साथ बीन का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बीन। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट में विल या फिर शैल प्लस हैव बीन का यूज करा जाता है। ओके चिल्ड्रन, और इसके बाद बचता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का भी पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव नहीं बनता। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव नहीं बनता। ओके चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अब इस पेज पे आपको एक टेबल दी हुई है, जिसमें द टेबल बेलो शोज सेंटेंसेस इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नंबर यानी कि आई। आई को कैसे कैसे चेंज किया जाता है वो आपको इस टेबल में अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। ओके, तो आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो एक बार अच्छे से आप इस टेबल को रीड कर लीजिए। जैसे मैं एक दो सेंटेंसेस आपको करा देता हूँ। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस एक्टिव क्या है? आई प्ले क्रिकेट। इसका हमें पैसिव बनाना है, तो देखो जो क्रिकेट दे रखा है इसमें, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और आई क्या है? आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट दे रखा है। ओके, और वर्ब क्या है इसमें? प्ले। और हमारा रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट का? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर का यूज करते हैं, है ना? और एक तो रूल हमेशा आपको याद रखना है, यूनिवर्सल यानी कि बेसिक रूल है, थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा करते हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ क्या दे रखा है आपको? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे क्रिकेट। ओके, अब क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे? इज का। ओके, सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है? इज का। उसके बाद हमें वर्ब यूज करनी होती है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया आपको, पैसिव का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया क्रिकेट। ओके, ऑब्जेक्ट क्या ले लिया? क्रिकेट। उसके बाद में इज एम आर तो आती है, आपको पता ही है, तो इज ले ली। उसके बाद में थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होती है? वर्ब क्या है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। और सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। आई जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और मी से पहले किसका यूज कर लेंगे? बाई मी। ओके चिल्ड्रन, यानी मी से पहले किसका यूज करना होता है? बाई का। सब्जेक्ट आई, आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी, और मी से पहले बाई का यूज करना होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो ठीक ऐसा ही आपको ये पूरा पेज जो आपको दे रखा है, इसका पूरे का अच्छे से स्टडी करना है आपको। ठीक है ना? और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से दोबारा करा दूंगा। ठीक है ना? सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू ही होता है, तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू होते हैं, है ना? तो इधर अगर यू है तो उधर भी बाई यू हो जाएगा जाके, है ना? एक्टिव में यू सब्जेक्ट है तो पैसिव में बाई यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Okay children, now here are some examples also. You can read these examples properly. Okay, ये पूरे सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आपको अच्छे से रीड करना है। एक एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, now your chapter is over, and if you have any doubt regarding this chapter, you can text me, then I will give you reply. Okay, thank you children.